Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the double circulation. We have seen that how the blood pumped by the heart will be sent into the pulmonary arteries and into the aorta. The aorta will be distributing this blood to all the tissues of the body through different arteries, arterioles and capillaries. Whereas the metabolic waste, carbon dioxide and other unuseful substances will be discarded by the tissues into the veins, venules, and these venules and veins will discard all this waste into the blood that is flowing into the vena cava. Through the vena cava, the blood comes back again to the heart. This was about the systemic circulation. When the blood pumped by the heart, that is particularly right ventricle, is pumped into the pulmonary artery. From pulmonary artery it reaches the lungs. Lungs में exchange होते हैं gases and then after this oxygenated blood enters into a pulmonary vein and through the pulmonary vein it opens into the left auricle and then into the left ventricle. This circulation was known as the pulmonary circulation. So we have seen both pulmonary and systemic circulation in the topic of double circulation. Now we are moving on towards the next topic, that how the cardiac activity is regulated. हार्ट अपनी एक्टिविटीज को कैसे रेगुलेट करता है? आपने कभी फील किया होगा that under some conditions your heart starts pumping faster, right? तो हार्ट रेट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हार्ट रेट का बढ़ना का मतलब क्या हुआ कि कार्डियक आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज होने वाला है. So there are some conditions where our cardiac output increases. For example, you meet a sudden accident on a road, heart rate increases, right? There is some very strange condition in the family. You are on an adventurous park. In all these conditions, the heart rate is going to increase and everyone might have felt it. So what is responsible for increasing this heart rate and what again brings back the heart rate to normal is to be discussed in this topic, that is regulation of our cardiac activity. First of all, I would like to mention that activity of heart, most of the activity of the heart is auto-regulatory. Okay, so normal activity of heart is intrinsically regulated. When we use the word intrinsically regulated, it means that it is self-regulatory. Intrinsically means regulated by itself. So most of the activities of the heart, right, it is self-regulatory. It is intrinsically regulated and that is due to presence of the nodal tissue. मतलब हार्ट का जो पंपिंग है, रेगुलर पंपिंग ऑफ हार्ट, वो कोई बाहर से रेगुलेट नहीं होता या नर्वस सिस्टम से रेगुलेट नहीं होता. वो जो रेगुलेशन है वो हार्ट खुद ब खुद करता है, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास होता है एसए नोड, एवी नोड और कार्डियक मसल्स. एसए नोड जो है वो ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए impulse pass on करता ही जाता है, right? After every 0.8 seconds it is going to send the signal again. We know what we have understood in the cardiac cycle. तो वो तो impulse automatically generate करता ही रहेगा. इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का वो होने ही वाला है. इसलिए हम कह सकते हैं द नॉर्मल पंपिंग ऑफ द हार्ट इज सेल्फ रेगुलेटरी. वो हार्ट खुद रेगुलेट करता है, ठीक है? नाउ सो ह्यूमन हार्ट इज nodal tissue and cardiac muscles और इसीलिए ह्यूमन हार्ट को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज मायोजेनिक, रेगुलेटेड बाय द मसल्स, रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स. इसीलिए क्या कहा जाता है? मायोजेनिक. अगर नर्वस सिस्टम हार्ट को रेगुलेट करता है तो उसे न्यूरोजेनिक कहा जाता है. जैसे कि फ्रॉग है तो फ्रॉग में
हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट के पंपिंग को रेगुलेट नर्वस सिस्टम करता है, तो उस केस में उसे कहा जाता है न्यूरोजेनिक। यहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले हार्ट के मसल्स ही हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है मायोजेनिक। बट स्टिल under different conditions the heart activity is regulated by nervous system as well as there is chemical regulation also. So first we are going to talk about that what is included in the neural regulation of the heart. Neural regulation. अब न्यूरल रेगुलेशन में इंक्लूड हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल रेगुलेशन, हार्ट जो है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। आपको पता होगा शायद स्टूडेंट्स दैट वी हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें वी आर इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनमें स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर्स इंक्लूड होते हैं जिन्हें कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। सो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, sympathetic nerve fibers are responsible for increase in the heart rate. Who is responsible? Sympathetic nerve fibers are responsible for increasing the heart rate, right? How do they do this? By constriction of blood vessels. Constriction of blood vessels का मतलब ये होगा that the blood pressure is going to increase, right? क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है जो हम कभी कोई एडवर्स सिचुएशन में आ जाते हैं, राइट, कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो जाता है तो इमीडिएटली हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को ज्यादा पंप करने लगता है, इट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो हमारी सारी आर्टरीज जो है उन्हें कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब नैरो कर देते हैं। आर्टरीज को नैरो करने की वजह से अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो प्रेशर से फ्लो होने लगता है, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसलिए हार्ट तक ब्लड बहुत ही ज्यादा प्रेशर में पहुंचता है और ज्यादा प्रेशर में पहुंचने की वजह से हार्ट का रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसे नॉर्मल करने के लिए देयर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, parasympathetic nerve fibers brings the heart rate to normal. How do they bring the heart rate to the normal? Because ये सिंपैथेटिक से ऑपोजिट काम करते हैं। ये जो है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर वो आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, पर जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स उन्हीं आर्टरीज को डायलेट कर देते हैं। डायलेट करने की वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और हार्ट रेट जो है वो भी नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो आपको कोई सिचुएशन में हार्ट बीट इंक्रीज होता है बट आफ्टर 5 to 10 minutes it again comes back to normal, and this happens due to the increased rush of the flow of blood due to sympathetic nerve fibers, and then after it gets normal due to the parasympathetic nerve fiber. This you might have even experienced when you are going to some adventure park, और वहां पे अगर आप कोई राइड्स या किसी में बैठ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि when you are just beginning that ride your heart rate is very fast, and once you complete it again comes back to normal. So that is also due to the sympathetic and parasympathetic nervous system. Moreover, there is specialized baroreceptors. Baroreceptors are the pressure receptors.
बैरोरिसेप्टर्स को प्रेशर रिसेप्टर भी कहा जाता है, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ आर्टरीज, नॉट ऑल आर्टरीज, पर्टिकुलरली हार्ट के पास एक कैरोटिड आर्टरी होती है और दूसरा एओर्टिक आर्टरी होती है। कैरोटिड और एओर्टिक ये जो है वो हार्ट के सबसे करीब दो मेजर आर्टरीज हैं जो प्रेजेंट होती है, जो एओर्टा से इमर्ज होती है। तो जहां पे एओर्टा है और जहां पे कैरोटिड आर्टरी है, उन दोनों की वॉल में, उन दोनों की आर्टरी की वॉल में स्पेशलाइज्ड प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर जो है दे recognize the change in blood pressure in the arteries. What do they recognize? Change in the blood pressure of the arteries. के arteries में कितना ब्लड प्रेशर है, ये इसके चेंज होने पर ये बैरोरिसेप्टर्स इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। सो इफ द ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, if the blood pressure in the arteries increases, what will happen? The stretch receptors, that is baroreceptor gets stretched and they send signal to the medulla. Medulla oblongata जो है, it is a part of central nervous system. मतलब क्या हुआ कि आर्टरी है, कौन सी आर्टरी, जो हार्ट के सबसे करीब लोकेटेड है, जिसे कहा जाता है कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्टरी। तो ये आर्टरी की वॉल में स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिन्हें कहते हैं बैरोरिसेप्टर। अब जब भी हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर से पंप करेगा, बट दिस प्रेशर इज गोइंग टू हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू, राइट। तो क्या होता है कि जब ये प्रेशर फ्लक्चुएट हो जाता है, जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इमीडिएटली इस प्रेशर को, ये ऑल्टर्ड प्रेशर को रिकॉग्नाइज करते हैं ये बैरोरिसेप्टर्स, और बैरोरिसेप्टर्स इन्हें रिकॉग्नाइज करके थ्रू द नर्व फाइबर्स दे सेंड द सिग्नल टू होम, टू द मेड्यूला पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जिसको कहा जाता है पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम a feedback signal comes, through autonomic nervous system to dilate the blood vessels. क्या सिग्नल आ जाता है? तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू मैसेज पास करते हैं दैट नाउ इट इज द टाइम टू डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड लोअर डाउन द प्रेशर। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया था, इसलिए बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेटेड बैरोरिसेप्टर्स ने मैसेज पास कर दिया टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। वहां से सिग्नल गया किसको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दे विल सेंड द सिग्नल टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर दैट नाउ डायलेट द ब्लड वेसल्स सो दैट द प्रेशर कैन कम बैक टू normal. Because very high blood pressure will be damaging the vital organs of our body like brain, heart, आईज एंड किडनीज। इन चारों ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा डैमेज हो जाता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना मतलब हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसका पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। सेकेंडली, द रेगुलेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में हम ये बात करते हैं कि देयर इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस जिसे कहा जाता है एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। ओके, केमिकल्स लाइक एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन which are released by the medulla
adrenal gland. They also regulate the heart rate and cardiac output. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होती है। ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड अबाउ द किडनीज इज द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स और अंदर के पार्ट को मेड्यूला कहा जाता है। अब ये जो मेड्यूला है वो दो हार्मोन रिलीज करता है और ये दो हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। उसमें से हार्ट रेट को नॉर्मली रेगुलेट करता है नॉरएपिनेफ्रीन, राइट। इन नॉर्मल सिचुएशन आल्सो हार्ट बीट जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसे रेगुलेट करने का काम है नॉरएपिनेफ्रीन का। पर अंडर सर्टेन एडवर्स कंडीशंस और अंडर सर्टेन सम स्ट्रेंज कंडीशंस हार्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके मेड्यूला से रिलीज होते हैं। मोर ओवर वो हमारे नर्व सेल्स जो होते हैं उनके एंडिंग में से भी रिलीज होते हैं। देयर आर टू प्लेसेस फ्रॉम विच दे आर रिलीज। नर्व एंडिंग से भी रिलीज होते हैं, जो सिनेप्टिक नर्व्स होते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा कि सिनेप्टिक नर्व्स के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहां पे भी एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन है, वहां से भी रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज और फिर वापस नॉर्मलाइज करते हैं, जस्ट लाइक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। सो इंश्योर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में मेनली हार्ट सेल्फ रेगुलेटरी है, but in some conditions it is regulated by our nervous system and sometimes by the chemical regulation also. So this was the topic of activity, heart activity, how it is regulated. Lastly, we are going to talk about the disorders associated with our circulatory system.